Hello guys, welcome back to audiobook 2 of class 11th biology chapter number 17 breathing and exchange of gases। ये है इसका ऑडियो बुक 2। इसमें अपन करने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में। लेकिन पिछले लेक्चर में गलती हो गई थी, एनसीईआरटी की रीडिंग एग्जैक्टली नहीं हो पाई थी, इसलिए पहले हम 17.1 और 17.1.1 की सिर्फ रीडिंग लेंगे, क्योंकि उसमें जो भी मटेरियल था मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 17.1 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। Mechanism of breathing vary among different group of animal depending mainly on other habitats and level of organization. Lower invertebrate like sponges, coelacanth, platform, etc. change O2 with CO2 by simple diffusion over entire body surface. Earthworms use the most cuticle and insects have a network of tubes called tracheal tubes to transport atmospheric air within the body. Special vascularized structure called gills, branchial respiration, are used by most of the aquatic arthropods and mollusks, whereas vascularized bag called lungs, pulmonary respiration, are used by terrestrial form for the exchange of gases. Among vertebrates, fish use gill, whereas amphibian, reptile, bird, mammal respire through lung. Lung-like amphibian-like frog can respire through their moist skin, known as cutaneous respiration also. Now we're gonna talk about 17.1.1 human respiratory system. We have pair of external nostrils opening out above the upper lip. जो हमारे अपर लिप के ऊपर जो नॉस्ट्रिल्स ओपन होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, वो पेयर में पाए जाते हैं। It leads to a nasal chamber through the nasal passage. Nasal chamber open into pharynx, portion of which is common passage of food and air. नेजल चेम्बर जो होता है वो पीछे जाके एक कॉमन पाथ पे ओपन होता है, जिसे फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स जो होता है ये एक कॉमन पोर्शन होता है जहाँ से फूड और एयर दोनों अंदर आते हैं। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंक्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। लैरिंक्स जो होता है वो वॉइस बॉक्स होता है, जिसके नीचे, जिसके अंदर कह लो, ट्रेकिया होता है, जहाँ पे फेरिंग्स ओपन होता है। एक हिस्सा फूड पाइप में ओपन होता है और एक ट्रेकिया में। Larynx is a cartilaginous box which helps in sound production and hence called sound box. During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent entry of food into larynx. फूड की गलती से विंड पाइप में एंट्री ना हो जाए, इसके लिए वहाँ पे एक एपिग्लोटिस जो एक फ्लैप होता है वो अवेलेबल होता है। Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity, which divides at level of the thoracic vertebrate, fifth thoracic vertebrate, into left and right pulmonary bronchi to the mid-thoracic cavity. Mid-thoracic cavity में ये जो fifth thoracic vertebrate है, वहाँ right और left primary bronchi divide होते हैं. Each bronchi undergo repeated division to form secondary and tertiary bronchi and bronchiole, ending up in a very thin terminal bronchioles. ये bronchi repeated divisions में undergo करते हैं ताकि secondary और tertiary bronchi का formation हो और bronchioles का, जो कि लास्ट में bronchioles में vanish, मतलब end up होते हैं. The trachea, primary, secondary, tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by a complete cartilaginous ring, each terminal bronchiole give rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure called alveoli. Alveoli जो होते हैं वो thin, vascularized bag-like structures होते हैं. Branching network of alveoli, branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lung. यानी कि bronchi, bronchioles और alveoli मिल के lung का formation करते हैं. We have two lungs.
which are covered by double-layered pleural membrane with pleural fluid between them. It reduces friction on lung surface. The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. The part starting with external nostril up to terminal bronchiole constitute the conducting part, जो कि मैं बता चुका हूँ. Whereas alveoli and their duct form the respiratory or exchange part of the respiratory system. और आप चाहें तो ये वाला डायग्राम भी देख सकते हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था. आगे बढ़ते हैं. The conducting part transports the atmospheric air to the alveoli, clear it from foreign particle, humidify, and also bring it at the air to the body temperature. Exchange part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air. Lungs are situated in thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. Thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side by dome-shaped diaphragm. The anatomical setup of lung in thorax is such that any change in volume of thoracic cavity will be reflected in the lung cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. Respiration involves following steps. First, breathing or pulmonary ventilation, by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. रेस्पिरेशन की कुछ स्टेप्स होते हैं. पहला, ब्रीदिंग होती है जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर हम अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकाल देते हैं. दूसरा, डिफ्यूजन ऑफ गैस अक्रॉस एल्वोलर मेम्ब्रेन. एल्वोलाइज की मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उसका डिफ्यूजन होता है. तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाय ब्लड. ये जो गैस एल्वोलाई ब्लड में मिलाता है, ये जो गैस है ये एल्वोलाई ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देता है, जो कि ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में लेके जाता है. डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू अकर इन फोर्थ स्टेप. जब ये ब्लड O2 लेके जाता है सेल्स के पास, तो इसके पहले भी लेके गया होगा जिसको उन्होंने कंज्यूम किया और CO2 का फॉर्मेशन किया. तो अब जब ये इस O2 लेके जाता है ब्लड, तो बदले में CO2 लेके वापस आ जाता है सेल्स के पास से. फिर आता है फिफ्थ स्टेप, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2. ठीक है, ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप. अब बात करते हैं 17.2 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. Breathing involves two stages: inspiration, during which atmospheric air is drawn in, and expiration, by which alveolar air is released out. ब्रीदिंग दो स्टेजेस से गुजरती है. पहली स्टेज जब एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी के अंदर लाई जाती है, और दूसरी कि जब बॉडी से एयर जो है वो बाहर निकाल दी जाती है एल्वोलाई के थ्रू. मूवमेंट ऑफ एयर इनटू and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between lung and atmosphere. ये जो प्रोसेस होता है गैसेस का अंदर और बाहर जाने का, वो लंग और जो एटमॉस्फेयर है उसके बीच में एक प्रेशर की वजह से संभव हो पाता है. इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखो, हमें अगर सांस अंदर लेनी है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो लंग के अंदर का प्रेशर है वो कम होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, दैट एनी सब्सटेंस विल ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. यानी कि बाहर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा और लंग के अंदर प्रेशर कम होगा तो एयर कहाँ जाएगी, हाई टू लो, यानी एटमॉस्फेयर से लंग में. ठीक है, तो ये हो जाएगा इंस्पिरेशन. दैट देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
इसका उल्टा अगर हो गया, यानी कि लंग्स में प्रेशर अब ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में कम, तो एयर अंदर से यानी लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर में जाएगी। डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, external and internal, intercostal between the ribs, help in generation of such gradient. ये जो ग्रेडियंट जनरेट होता है ये डायफ्राम और कुछ सेट ऑफ स्पेशल मसल्स है जो रिब की ग्रेडियंट पे पाई जाती है उसकी वजह से होता है, जिनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर इन द एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस, और इसकी वजह से इंस्पिरेशन जो है वो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करता है जो कि थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, अंदर वाली पोस्टीरियर एक्सिस पे। ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब एंड द स्टर्नम। जैसे ही हम जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं रिब्स और स्टर्नम को ऊपर उठा देती है, लिफ्ट अप करती है, कॉजिंग एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। यानी कि जब भी देखा होगा लंबी सांस लेते हैं तो लंग्स पूरे बाहर फूल जाते हैं और जैसे ही उसे रिलीज करते हैं तो वो नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। यानी रिब्स के साथ जो हमारे लंग्स और डायफ्राम है वो बाहर की तरफ फूलने लगते हैं। ठीक है। इसलिए रिब्स जो है उसमें जो लास्ट 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स है उन्हें फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं। ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। अगर थोरेसिक वॉल्यूम में ये कॉज हो रहा है तो जो हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी इसी तरीके से इंक्रीज होगा। An increase in pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure which force the air from outside to move into the lung. That inspiration, और इसी की वजह से इंस्पिरेशन होता है। किसकी वजह से? जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जो कि लेस एटमॉस्फेरिक से प्रेशर को फोर्स करता है कि वो बाहर की एयर को लंग्स के अंदर मूव कराए। इसी को इंस्पायरेशन कहते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स return the diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby pulmonary volume. जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स होता है इंटरकोस्टल मसल अपने नॉर्मल डायफ्राम के जो स्टेजेस में रिटर्न कर जाती है, स्टर्नम जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन ऑब्टेन कर लेता है और थोरेसिक वॉल्यूम भी जो है कम हो जाता है और पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाता है। यानी कि जैसे ही हम रिलैक्स करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, सारे के सारे जो हमारे पार्ट्स थे, लंग्स, डायफ्राम, चेस्ट, रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स, जो अपने साइज से थोड़ा बढ़ के फूल गए थे या कह लो एक्सपांड हो गए थे, वो वापस से श्रिंक होके अपने नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, दिस लीड टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट एक्सपिरेशन, जिसकी वजह से एक्सपायरेशन होता है। वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन में जो एक्स्ट्रा मसल्स होती है उनकी वजह से जो है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, 12 से 16 बार पर मिनट जो है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ब्रीथ करता है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पैरोमीटर
विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। और एक जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि इन्वॉल्व हुई है ब्रीदिंग के मूवमेंट में, उसका पता लगाया जा सकता है स्पायरोमीटर का यूज़ करके, जो कि पल्मोनरी फंक्शंस का असेसमेंट करता है, क्लिनिकल असेसमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं 17.2.1 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की। देखो इसमें क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी कि वो उतना एयर का वॉल्यूम जितना या तो हमने अंदर इनहेल किया है या एक्सहेल किया है नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान, इसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये अप्रॉक्सीमेटली 500 ml का होता है और हेल्दी मैन में ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट जा सकता है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम यानी कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है जिसमें हम जितनी एयर अंदर ले रहे हो जितनी बाहर भेज रहे हैं, ये तो टाइडल वॉल्यूम हो गया। अब बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, यानी कि देखो टाइडल वॉल्यूम क्या था। अब देखो इस केस में मेरे फेस को ध्यान से देखना, जस्ट वाइल आई होप कैमरा विल गोइंग टू बी एक्टिवेटेड। ओके, कैमरा एक्टिवेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। नॉर्मल तरीके से अगर अपन जानने की कोशिश करें तो अपन अगर नॉर्मल सांस लेते हैं, ये नॉर्मल तरीके से अपन सांस लेते हैं यानी कि टाइडल वॉल्यूम है। लेकिन अगर अपन फोर्सफुली एयर को इनहेल करें, यानी कि ये तो नॉर्मल तरीके से अंदर लेते हैं, अगर इससे थोड़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर अपन अंदर ले लें तो अपन कहते हैं कि ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, यानी कि हमने आवश्यकता से अधिक फोर्स लगा के थोड़ी सी ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल किया है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा, इसका उल्टा, कि अपन नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, ये नॉर्मल ब्रीदिंग के रिस्पेक्ट में है। इंस्पायरेटरी में क्या हुआ, नॉर्मल ब्रीदिंग करते करते थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अपन ने ज़्यादा ले ली जितनी अपने को रिक्वायर्ड थी उससे, तो वो हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, जब हम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can expire by forcible expiration. This averages 1000 ml to 1100 ml. जब हम अपनी फोर्स को एक्स्ट्रा जनरेट करके, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं ऐसे, लेकिन अगर मैं इंस्पिरेशन नॉर्मल तरीके से कर रहा हूँ और एक्सपायरेशन फोर्सफुली कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, यानी इनहेलेशन तो नॉर्मल है लेकिन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन मैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को अपने लंग्स से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका वॉल्यूम 1000 से 110 ml 1100 ml ज़्यादा हो सकता है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, देखो volume of air remaining in the lung even after forcible expiration. This averages 1100 to 1200 ml. By adding up a few respiratory volume described above, one can derive various pulmonary capacity, ठीक है, which can be used in clinical diagnosis. अब देखो रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में कड़वा सच बताता हूँ। According to NCERT, volume of air remaining in lung even after forcible expiration, forcible expiration करने के बावजूद जितनी एयर लंग्स में रह जाती है वो रेसिडुअल वॉल्यूम होती है, ठीक है, जिसका जो वॉल्यूम है वो 1100 से 1200 ml रहता है। अब देखो जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारा रेसिडुअल वॉल्यूम का जो ऑक्सीजन है
वो चेंज हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब अब यार एक ही ऑक्सीजन बहुत देर तक बॉडी में रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगी ना, तो हर बार ऑक्सीजन चेंज करनी पड़ेगी नॉर्मल तरीके से। लेकिन ये बॉडी के बाहर नहीं जाएगी, ये अपने जो अमाउंट है उसको स्टेबल रखेगी। क्यों? रेसिडुअल वॉल्यूम पता है बॉडी के बाहर कब जाता है? जब तुम अपनी आखिरी सांस छोड़ते हो। आखिरी सांस मतलब अभी तुमने सांस ली और फिर तुमने छोड़ दी, तो ये आखिरी सांस जो छोड़ी उसकी वजह से नहीं, जब तुम मर जाते हो और मरने के समय जब तुम आखिरी सांस छोड़ते हो ना, और तब तक जो सांस लंग्स बचा के रखता है उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ वेरियस टाइप की पल्मोनरी कैपेसिटीज़ की, जिसका क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को पढ़ा उसके ऊपर रिवाइज कर लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपायरेशन की प्रोसेस इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी इन यानी कि फोर्सफुली रिक्वायर्ड से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को इनहेल करना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली लिमिटेड से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को बॉडी से बाहर निकालना, एक्सपायरेटरी। और रेसिडुअल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहता है और मरने के बाद ही लंग्स से निकलता है, ये फैक्ट है। ठीक है, अब देखिए, अब अपन इस जो हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस है उसके बेसिस पे हम क्या क्या यूज़ करते हैं। देखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को पता लगाते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को पता लगाते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को पता लगाते हैं, वाइटल कैपेसिटी को और टोटल लंग कैपेसिटी का पता लगाते हैं। अगर किसी की इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में पता लगाना है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन नॉर्मल एक्सपायरेशन में या एक पर्सन इंस्पायरेशन के बाद नॉर्मल एक्सपायरेशन में निकाल सकता है, इसे कहते हैं जिसमें टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अपन कैलकुलेट करते हैं। देखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। यानी कि मैंने अभी सांस ली, अब मैंने पूरी की पूरी सांस जितनी मैं छोड़ सकता था वो मैंने छोड़ दी। अब मैं जो न्यू इनहेलेशन करूँगा ये ब्रीथ रिलीज करने के बाद, और जितना अमाउंट ऑफ ब्रीदिंग मैं इनहेल कर रहा हूँ उसका टोटल वॉल्यूम एक पर्सन में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मानी जाती है। अब ये जो मैंने अंदर इनहेल की और होल्ड करके रखी ये मेरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। यानी टाइडल वॉल्यूम पता लगा लो कितना है, उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ ऐड कर दो तो तुम्हारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बाहर आ जाएगी, पता चल जाएगी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इसका उल्टा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। मैंने नॉर्मल तरीके से सांस अंदर ली, उसके बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर मैं लंग से बाहर निकाल सकता हूँ वो हो गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कैसे? अंदर ले ली जितनी ले सकता था, अब नॉर्मल तरीके से मैंने इंस्पिरेशन कर लिया, अब मैं कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एयर अपने अंदर से बाहर निकाल सकता हूँ नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, उसे कहेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मैंने एक्सहेल की इसको कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसको कैलकुलेट करने के लिए टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेना चाहिए, यानी कि ऐड कर लेना चाहिए, तो अपने को पता चल जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी थी। फिर बात करते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड ERV एंड RV। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में रह जाती है
आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल तरीके से सांस को बाहर छोड़ने के बाद जो अपन ने रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़ा था उसे कैलकुलेट करने के लिए जो हम करते हैं उसको फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन बाय फोर्स एक्सपायरेशन, यानी कि जितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन ब्रीथ कर सकता है एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन देने के बाद, हम उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, जिसको कैलकुलेट करने के लिए ईआरवी, टीवी और आईआरवी का हम क्या जो है एडिशन कर देते हैं। अब अगर बात करें टोटल लंग कैपेसिटी की, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन लंग एट द एंड ऑफ पोस्ट इंस्पिरेशन, यानी कि उतना वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स में एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद हुआ है वो होता है टोटल लंग कैपेसिटी। दिस इंक्लूड ईआरवी, आरवी, टीवी एंड आईआरवी, और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल कैपेसिटी कह सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया अपना 17.2, जिसमें अपन ने किया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। देखो सबसे पहले क्या करना, जो स्टार्टिंग में रेसिडुअल वॉल्यूम तक का दिया है, यानी कि टाइडल वॉल्यूम टीवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ईआरवी और रेसिडुअल वॉल्यूम आरवी, पहले इनको अच्छे से याद कर लेना। इनके बेसिस पे तुम इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, फंक्शनल, वाइटल और टोटल लंग कैपेसिटी इजीली निकाल सकते हो। सिर्फ इसका कंसेप्ट समझ लेना। अब ये था अपना पार्ट 2। अब मिलेंगे पार्ट 3 में विद द न्यू टॉपिक दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये था हमारा ऑडियो बुक 2। अगर ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को हिंदी साहित्य काव्य, जिसमें 10th से लेकर 12th तक के साइंस के लेक्चर्स दिए जाते हैं वीडियो एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में, जो कि बहुत ही ईजी रहते हैं। और अब ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल कर दी गई हैं विद लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी ऑफ ईच चैप्टर। ये था हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का चैप्टर। इसके पहले ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, ये डाल दिए गए हैं और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी डाल दिया गया है। अब हम आगे जो है पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी को अगले 4 से 5 दिन में वो भी डाल देंगे। तो वीडियो पर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। ठीक है, और मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ मेरे ही नाम की आईडी से, विक्रमादित्य राव। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट ऑडियो बुक विद द न्यू टॉपिक दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर मैं इसका ओवरव्यू बता दूं तो कितनी, जैसे अपन ने इसमें पढ़ा ना अभी कि कितना जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ है उसमें कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनहेल किया, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक्सहेल किया, तो ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात की, एल्वियोलाई के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि, और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स और सेल्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि कितने देर में कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज या इनहेल किया है, एक्सहेल या इनहेल किया है बॉडी के टिश्यू ने या फिर लंग्स ने, और वहाँ से फिर हार्ट के पास कितना गया है। ये सब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इतना ही पढ़ना है। तो इसमें कोई बहुत ही बड़ी वो तीर मारने लायक चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस है नहीं है। ठीक है, तो इजीली समझ में आ जाएगा। उसके अलावा ये जो डायग्राम तुम्हें दिखाया है मैंने, ये डायग्राम और ये वाला डायग्राम, इसको अच्छे से याद कर लेना। खासकर इंस्पिरेटरी वॉल्यूम में अगर तुम इस टेबल को याद कर लो, इस टेबल को याद कर लो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इस टेबल को याद करने के बाद तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, भले ही वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस से आया हो या फिर हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से आया हो। ठीक है, क्योंकि ये टेबल में मैंने ग्राफ जो स्पायरोग्राम बनाता है एक नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में वो ड्रॉ किया है, साथ ही साथ इसमें इसकी जो टिप है वो कहाँ तक जा रही है वो भी बताया है। जैसे ये यहाँ तक जा रही है तो ये टाइडल वॉल्यूम है, यहाँ तक जा रही है तो इंस्पिरेटरी वॉल्यूम है, यहाँ तक आ रही है तो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है, यहाँ पे जो नहीं आ पा रही वो रेसिडुअल वॉल्यूम है। फिर यहाँ पे लंग्स की कंडीशन के बारे में बताया है, लंग की कैपेसिटी के बारे में कि आईसी, ईसी, वीसी,
ठीक है, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा ना, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी, ये सब लिखा है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए दिस इज मी विक्रमादित्य राव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साई राम एंड बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इफ लाइक द वीडियो or audio book, do like, subscribe and share to our channel. Thank you. Stay safe, stay healthy. Om Sai Ram and bye.